بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے. نارملسی یہ ہے نیا کشمیر، بدلتا کشمیر، شائننگ کشمیر. آرٹیکل 370-35A کے بعد سے ہم یہ نام نہاد جھوٹے نعرے سنتے آئے تھے. اس وقت آپ یہ ویژولز دیکھ رہے ہیں. مودی سرکار کہتی ہے کہ کشمیر میں سب ٹھیک ہے، لیکن ہم آج مودی کے سفید جھوٹ کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے حقائق تاریخوں کے ساتھ لے کر آئے ہیں. اگر سب ٹھیک ہے تو پھر جموں کی سڑکیں دہاڑی دار مزدوروں کے نعروں سے کیوں گونج رہی ہیں؟ اگر سب ٹھیک ہے تو پھر کشمیری کسان اور تاجر سڑکوں پر کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ مودی کے لیے یہ بات ہے کہ یہ جو تاریخیں ہم بتانے جا رہے ہیں مودی کو، یہ یقیناً اس کے منہ پہ ایک تماچہ ہے. اس کو ایک شیشہ دکھانا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو نارملسی کا ڈھنڈورا یہ پیٹتے ہیں. ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں. ستمبر 2022 جموں میں ہزاروں نوجوانوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر کا گھیراؤ کیا، اور احتجاج کس بات پر تھا؟ بے روزگاری اور بھرتیوں میں ہونے والے میگا سکینڈلز پر، جس میں کرپشن میں انہوں نے پیسہ کھایا. اکتوبر 2022 ٹھیک ایک مہینے بعد مقبوضہ کشمیر کے سیب پیدا کرنے والے کسانوں نے سری نگر جموں ہائی وے میں اسے بلاک کر دیا، کیونکہ جان بوجھ کر کشمیری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ٹرکوں کو روکا جا رہا تھا. جنوری اور فروری 2023 انسداد تجاوزات کے نام کے اوپر جب غریبوں کے سر سے چھت چھینی گئی تو کیا یہ نارملسی تھی؟ اور کڑاکے کی اس وقت جو ہے وہ ٹھنڈ پڑ رہی تھی اور پوری وادی کے لوگ سڑکوں پر تھے. اگست 2023 جموں میں سرور ٹول پلازا اور سمارٹ میٹرز کے خلاف وہ تاریخی احتجاج ہوا جس نے کشمیری ہندو مسلم اتحاد کی نئی مثال قائم کر دی اور پورے جموں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. اب آتے ہیں مئی 2024. مہنگی بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے عوام نے سول نافرمانی کی دھمکی دی اور سڑکوں پر نکل آئے، جس کی پاداش میں کئی لوگوں کے اوپر UAPA بھی لگایا گیا. مودی سرکار نے کشمیر کو ایک اوپن جیل میں جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جہاں بھوک ہے، افلاس ہے، ننگ ہے، انفلیشن ہے. اس وقت اگر آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دیکھیں تو انفلیشن اس وقت جو ہے پورے بھارت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. ان امپلائمنٹ کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ PhDs سڑکوں پہ سائڈ پہ وہ پھل اور جوس بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں. وہاں پہ جو نوکریاں ہیں وہ باہر کے لوگ آ کر لے رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. آج ہم بات کریں گے. جموں میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر کام نہیں ہوگا تو اگر تنخواہ نہیں ہوگی تو پھر کام بھی نہیں ہوگا. نو ورک نو پے والا اس وقت حساب ہو رہا ہے. لوگ سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، خودکشیاں لوگ کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. اس پر بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں شمیم شال صاحبہ، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑی بے باک آواز ہیں، سینئر حریت رہنما ہیں، APSC کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں اور خاص طور پہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر APSC کے فورم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز بنتی ہیں. مدثر حسین راجپوت صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں. زبیر حسین صاحب ہمیں یورپ سے جوائن کر رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑی بے باک آواز ہیں. علی رضا سید صاحب ون مین آرمی ان کو میں اکثر کہتا ہوں، چیئرمین کشمیر کونسل EU سے تعلق ہے ان کا. علی رضا سید صاحب جو کشمیریوں کی پلائٹس ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو آئے دن میڈیا کے اوپر اور انٹرنیشنل جو پار سینٹرز ہیں ان پہ یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. عبدالحمید لون کشمیری تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. ناجائز قابض ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کی عوام سے پہلے روزگار چھینا اور اب ان سے اجرت اور تنخواہوں کی ادائیگی سے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، جس کا مقصد ملازم پیشہ اور محنتی افراد کو معاشی طور پر کمزور اور 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم کرنا ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں آل ڈیلی ویجرز جموں و کشمیر سنگریش سمیتی کی اراکین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر جموں میں پریس کلب کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کی قیادت سمیتی کے صدر سنی کانت چپ نے کی. احتجاج میں مختلف محکموں کے یومیہ اجرت پر
काम करने वाले मुलाजमीन शरीक हुए। बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की और मुतालबात की मंजूरी के लिए आवाज बुलंद करते रहे। मुजाहिरीन ने हिंदुस्तानी इंतजामिया की नारवा पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की। समेती रहनुमाओं का कहना था कि इंतजामिया बेहिसी का शिकार हो चुकी है, क्योंकि धरनों के बावजूद मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही। अफसरान सिर्फ झूठी यकीन दहानियां करा रहे हैं, जबकि मसाइल के हल के लिए अभी तक किसी किस्म की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें तनख्वाहों के साथ सेहत की सहूलियात और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम भी नहीं होगा। जम्मू के बारे में बीजेपी का और आरएसएस का ये दावा था कि जम्मू इनका गढ़ है। अब जम्मू ही इस वक्त एहतजाज का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है। इस वक्त जम्मू के लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस अजियत से दो चार हैं। सबसे पहले आपको ज़रा जम्मू का जो हिंदू है, जो कश्मीरी हिंदू है वहाँ का, वो इस वक्त किस अजियत से गुजर रहा है वो भी, और वहाँ का जो मुसलमान है वो किस अजियत से गुजर रहा है, आपको ज़रा वो दिखाते हैं। 22 साल से लोगों के साथ काम करवा रहे हो बिना पैसों के, आप तो गलत कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 7 साल तक काम करवाने के बाद पक्का करवाने का अधिकार है। ये तो उनका ऑर्डर फॉलो नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती सरकार। ये कैसी सरकार है? उमर साहब हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हम भी भीख मांग रहे हैं। जैसे आपने भीख मांगा था वैसे हम भी भीख मांग रहे हैं। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ की हद हो चुकी, झूठ अब नहीं चलेगा। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? ये सरकार जब वोट लेने के लिए आती थी तो हमसे बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते थे कि जो भी आपका काम होगा हम करेंगे। हमें बताइए यार, हमारी झोली के अंदर टोपी फैला फैला के, ये देखें सर, टोपी फैला के मुझसे मांगा था, हमसे वोट मांगा था कि हमें वोट दे दें, हमारी झोली में वोट डालने। जब हमने वोट डाला तो इन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6 सिलेंडर सालाना फ्री देंगे, आपको राशन जो है वो 10 केजी हम फ्री देंगे। सर जब तो सरकार पे हमने इनको अपना अधिकार, अपना वोट दे दिया, उसके बाद हमें कोई देखने के लिए भी नहीं मिला। भाई हमें अगर कुर्सी पे बिठाने का काम आता है तो हमें उतारने का पता भी है। आप लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो तकलीफ़ है, उनकी आवाज़ों से इस वक्त देख सकते हैं, उनके चेहरों से महसूस कर सकते हैं। शमीम शॉल साहिबा ये तो कहते थे कि आर्टिकल 370 35A के ख़ात्मे के बाद मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा है, नॉर्मलसी है, नया कश्मीर है, शाइनिंग कश्मीर है। ये है नया कश्मीर? यासिर साहब, मुझे याद आ रहा है कि जब हम बात करते थे मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये 2019 से पहले की बात, तब से तो रब्ता नहीं हो रहा है, तो जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे उनकी तादाद तकरीबन उस वक्त 1 लाख के करीब थी। कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जिनको एक माहदे के तहत एक कंसोलिडेटेड पे दी जाती हैं विदाउट एनी मतलब रीज़न कि वो कब रेगुलराइज हो जाएंगे। उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, सिवाय वो एक तनख्वाह 2000 जैसे अभी बताए ना, 900 जो छोटा एम्प्लॉय है, और सबसे ज़्यादा थी 7000 जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, PhD होल्डर्स, और न अभी उनकी कभी पोस्टिंग होती थी, न अभी वो अपने इलाके को छोड़ सकते थे, और न वो कभी रेगुलर पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि उनके साथ ये माहदा किया जाता था। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी कि वो बेचारे उन 7000 के पीछे भी जॉब्स करते थे कि जब पोस्ट आएंगे तो वो उस पर अप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, या जो सो कॉल्ड अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है, वो जब एलिजिबल ही नहीं है, कोई वहाँ पर जॉब्स देने के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो आपने कहा, ये 2019 के बाद जब एब्रिगेशन हो गया, 6% सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, जो हम रियासत का पूरा एक ढांचा है, 6% इंडिया के मुकाबले में कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। 5 लाख मुलाजमीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में, वो मुलाजमीन जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, उनकी जॉब्स को कट किया गया है, क्योंकि अब वो जॉब्स एडवर्टीजमेंट नहीं होती है, उनको इसी तनख्वाह पर जो ये 5900 की तनख्वाह, जिसके खिलाफ ये आज एहतजाज जम्मू में या बांडीपोरा में हुआ है, या श्रीनगर में जो उन्होंने जामियात को बंद कर दिया, जो वहाँ के लोग से 1500 रुपये पर तनख्वाह पर काम करते थे, इस पर जब स्टूडेंट्स ने एहतजाज कर दिया, पता ये चला है कि अमित शाह की जो हमेशा से ये एक पोजीशन रही है 2019 के बाद, कि देखा ये जाए कि रियासत की जो ये तहरीक है, मोमेंट है, ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में गढ़ कर चुकी है, ये ख़त्म नहीं हो रही। इसके लिए क्या किया जाए?
आप छोड़ दीजिए सो कॉल्ड गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकता है, पियोन को भी तो वही एम्प्लॉयमेंट दे सकता है ना। उमर फारूक के पास कोई इख्तियार नहीं है जो बोर्ड की बात करते आते हैं, थे। उसमें भी आते हैं जरा कि तो आप मुझे उमर के बताएं पास क्या है, कि क्या उन्होंने नहीं। क्या किया, अमित शाह ने क्या किया कि इस जो कश्मीर की 3 चीज़ें जो बहुत अहम थी, उनका जो टूरिज़म था, इनकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, उनका जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, और दूसरे जो 3 ये जोन्स थे जहाँ से रेस होता था, फिर एम्प्लॉयमेंट थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको क्रश किया जाए। तो पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट रोक दिया गया। कोई, अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल से कोई नई एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। अब जो हम ये नहीं कह सकते इस वक्त यहाँ इस टेलीविजन चैनल पर कि भर्तियां तो फिर भी हो रही हैं, भर्तियां हिंदुओं की हो रही हिंदुओं की हो हैं, रही हैं। मुसलमानों की ख़त्म की जा रही हैं। और भर्तियों पर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग, जब से 35A ख़त्म किया गया, बाहर से लोग आ रहे हैं। अंदर के लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग करके कंप्लीट आए हैं, उनको जो नेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, 2015 से उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। जब उनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, वो कैसे उन जॉब्स पर वो बाहर बेच रहे। इसीलिए अमित शाह का ये कि अब इस एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्शन है, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को बाहर भेजने के लिए पुश किया जाए, यहाँ से लोग हिजरत करें। तो इसमें यह है कि जब लोग PhD करके बाहर कहाँ जाएं? ये तो दुनिया के पासपोर्ट मुख्तलिफ नहीं देते, तो देखिए, बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर जो हिंदुस्तान जाते हैं बेचारे, फिर वहाँ तो मारे हिंदुस्तान जाएं। उनके साथ क्या मारने सलूक का- होता है? मारने का यही तरीका एक है, जब वहाँ जाएंगे जॉब्स करेंगे, जिस दिन वहाँ क्रिमिनल राइट होगा, बेचारे मारे जाते हैं। जिनके पास कहीं ना बाय हुक्स क्रुक्स पासपोर्ट आता है, वो गल्फ कंट्रीज में भाग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए कनाडा जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है सिस्टमेटिकली कश्मीर की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए, कश्मीर के यूथ को खत्म करने आपने के बड़ी लिए। डिटेल के साथ बताया कि उनको इनका ये जो एक अमित शाह का जी जी जो है बिल्कुल प्लान आपका है। पॉइंट आ गया। नॉर्मलसी का जो ढिंडोरा ये पीट रहे हैं, उसकी जो असल सूरत हाल है वो ये। शाह जी, मैं आपको इसमें शामिल करूंगा। अली सैयद साहब, ये जो सारा मामला सामने आ रहा है, ये जब भी अपनी कश्मीरी अपनी नौकरी बचाने के लिए, रोज़गार बचाने के लिए जब एहतजाज करते हैं, तो ये सिंपल उनके ऊपर PSA या UAPA लगा के उनको अंदर कर देते हैं। कब तक ये होता रहेगा? ये जो अभी सब कुछ हो रहा है, ये क्या वो पार सेंटर्स नहीं देख रहे जिनके सामने आप भी सरापा एहतजाज होते हैं, शमीम साहिबा भी सरापा एहतजाज होती हैं? असल में सारी दुनिया देख रही है। आज के दौर में अगर आप ये सोशल मीडिया को ले लें और दूसरी जो इस वक्त हैं चीज़ें अवेलेबल, हर बंदा उसको देख रहा है। लेकिन असल में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि किस चीज़ को हम समझते हैं कि इस पे हमें बोलना चाहिए, इस पे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ के जो पावर कॉरिडोर्स है, और वैसे भी दुनिया जो है इस वक्त आपने देखा है, ये ईरान जंग के बाद और बाकी जो इस वक्त ये चाइना की विजिट, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, कल इनकी एक कोई मीटिंग भी थी ब्रिक्स की न्यू दिल्ली में। जी, ये असल में हर चीज़ छुपाने की कोशिश करते हैं। हर वक्त मोदी सरकार झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 2019 में जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, तो उस वक्त से वो झूठ बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है वहाँ तरक्की होगी, कश्मीरी खुशहाल होंगे, ये जो तहरीक आज़ादी है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वक्त ने साबित किया, ये जितनी जो इस वक्त कश्मीरियों के साथ वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये एक प्री प्लान पॉलिसी है। उसके तहत ये फरमाइएगा कि आप तो बड़े अरसे से इस मौजू के ऊपर काम कर रहे हैं और अथॉरिटी माने जाते हैं। 2019 से पहले क्या कश्मीरी इस तरह से बाहर निकले थे, इस तवातर के साथ, तसलसल के साथ, अपने रोज़गार के लिए, अपनी मामलात के लिए, अपनी नौकरियों के लिए, जो अभी निकल रहे हैं, जो सूरत हाल अब बन चुकी है, और जो कश्मीरियों के रिसोर्सेज थे, उनके रिसोर्सेज कौन खा रहा है? क्या कश्मीरियों के लिए वो रिसोर्सेज काफ़ी नहीं थे जो इतने अरसे से वो रिसोर्सेज पे वो सेल्फ सफिशेंसी कर रहे थे, और वो यूपी से, बिहार से और पंजाब से लोग आकर कश्मीर में मुलाजमत करते थे या उनमें वहाँ पे आके मजदूरी करते थे? तो अचानक क्या हो गया ऐसा? देखिए, अचानक ये सारी जो वही मैं दोबारा कहूँगा कि जो एक प्री प्लान
पॉलिसी है मोदी सरकार की, जो हमेशा से रही है कि ताकत के जरिए, और यहाँ भी आप देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो कश्मीरीज हैं उनको जाबों से निकाला जा रहा है और उनको रिप्लेस किया जा रहा है इंडियन लोगों से, बिहार से और दूसरे इलाकों से। तो ये एक पॉलिसी है जिसकी वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं जो मेडिकल करके आते हैं या जो एजुकेशन में हाईएस्ट नंबर्स भी होते हैं, उनकी जगह वो दूसरों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बेरोजगारी भी पैदा कर रही है, बेचैनी भी पैदा कर रही है, और इसीलिए लोग जो हैं वो अब पहले आप कहते थे खाली मुस्लिम, लेकिन अब तो हिंदू भी निकलना शुरू हो गए हैं जो कश्मीरी। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है अली सईद साहब। मैं ये जुबैर साहब के पास ये नुक्ता लेकर जाऊंगा। जम्मू में अक्सर बात होती थी, वो कहते हैं जम्मू तो हमारा है, जम्मू का हिंदू, जम्मू का डोगरा जो है वो तो हमारे साथ है, और ये वैली ही है जो कि हमारे हाथ नहीं आ रही। ये जो अभी एहतजाज हो रहा है, इसने तो जम्मू के डोगरे को, जम्मू के हिंदू को, वैली के पंडित को, वैली के मुसलमान को, जम्मू के मुसलमान को, सबको इकट्ठे कर दिया है। इससे कितना बड़ा वाज़ेह पैगाम मिला है कि कोई इनके साथ नहीं है। देखिए, हमें यहाँ पर ये समझने की कोशिश करनी होगी कि ये जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है वो सिर्फ तनख्वाहों का एहतजाज नहीं है। ये उस हिंदुत्व मॉडल की नाकामी का नुआ है जो मोदी सरकार एक अरसे से तरक्की के शक्ल में दुनिया को बेचने की कोशिश कर रही थी। तो अगर मैं यहाँ पर बैठ के यूरोप की अगर बात करूँ, तो हम जब यहाँ के अखबारात की मुताला करते हैं तो हमें यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात की जाती है, जबकि अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर भारत ने और मोदी सरकार ने सोशल इकोनॉमिक्स टेररिज्म है उसको लॉन्च करके रखा हुआ है। अगर हम माजी की बात करें तो हमें जो है ना ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। देखिए, तारीख गवाह है कि जब जब कोई गासिब ताकत जो है या गासिब कुव्वत किसी इलाके पर कब्जा करती है तो सबसे पहले वहां के वसाइल और फिर वहां के मेहनत कश का इस्तेसाल करती है। 1920 और 30 की दहाई में जब यूरोप में मजदूरों की जो तहरीकें हैं वो आवाज उठा रही थी, उस वक्त भी कश्मीरी जो है वो बेगार के खिलाफ लड़ रहे थे। आज 2026 में भी जो संघर्ष समिति है उसका वही मुतालबा है जो 100 साल कबल था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त डोगरा था और आज दिल्ली का जो है वो मिस्टर ब्राउन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो अगर अहम बात की जाए वो ये बात है कि ये कहते हैं कि जी 370 की जो तब्दीली की हमने आइन की, उसके बाद बहुत ज्यादा कश्मीर में सरमायाकारी आई है। तो ये बताएं कि सरमायाकारी है कहाँ? अगर आपके पास इतना पैसा आ चुका है तो क्यों कर ये जो डेली वेजर्स हैं उनको आप रेगुलर नहीं कर पा रहे? हकीकत ये है कि भारत जो है वो जानबूझकर कश्मीरियों की जो मईशत है या माशी हालत है उसको खस्ता कर रहा है ताकि वो आज़ादी के नारे के बजाय रोटी के पीछे भागने लगे। लेकिन यहाँ पर ये बात जो है वो वाज़ेह हो गई है कि यहाँ पर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी आज सड़कों पर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है। जुबैर भाई, ये बताइएगा कि ये जो इन्होंने मजहबी कार्ड इतने अरसे से खेल रखा था जम्मू के अंदर, और वहाँ पे जाके बीजेपी तिरंगा भी लहराती थी और लहराती है, और उसके बाद फिर वंदे मातरम के गीत भी गाए जाते हैं, जय श्री राम के नारे भी लगाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इतने सारे अरसे के अंदर 2019 के बाद बिलखुसूस किस हद तक इनका मजहबी कार्ड अब वो बुरी तरह से फेल हो चुका है जम्मू के अंदर? बिल्कुल, देखें ये इसी तरीके से है कि इनकी जो मजहबी कार्ड खेल के डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसका खात्मा हो गया। ये उसकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है कि आज जो है वो हिंदू भी और मुसलमान भी मुश्तरका तौर पे सड़कों पे निकले हुए हैं। मजे की बात ये है कि भारत जो है वो कश्मीर को इंडिया का जो है वो ताज कहता है, और आज आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने कश्मीर के जो इंडिया का ताज जो कहते थे उसके नगीने जो है वो सड़कों पर रुल रहे हैं। यहाँ आपके प्रोग्राम के तवसुत से मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि मोदी जी, ये जो तरक्की की तकरीरें हैं वो खाली पेट नहीं सुनी जाती। ये जो नो वर्क नो पे का जो नारा है वो दरअसल आपके इस्तीफे का मुतालबा है। यहाँ पर यह बात दुनिया के आगे आया हो चुकी है कि मजहबी कार्ड जो भारत ने खेलने की कोशिश की थी उससे भी जो भारत के मजालिम थे वो छुपे नहीं। आज ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी जो है उन तमाम मजालिम का जो है वो आप समझे कि एक ऐसी शक्ल सामने लेके आए कि दुनिया के पास ये चीज वाजे हो गई है कि भारत
ना सिर्फ जो है कश्मीर को मजालिम के अंदर धकेल रहा है, बल्कि कश्मीरियों का जो हक था मजहबी कार्ड खेलने के लिए, उसको मजहबी कार्ड खेलते हुए जो कश्मीरियों का हक छीनने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आज जो है मलिया मेट हुआ। और कश्मीरी जो है वो ना सिर्फ मजहब बल्कि आप ये समझे कि एक ऐसी यकजहती के तौर पे सामने आए हैं कि जो हिंदू लोग थे वो भी आज मुसलमानों की सपोर्ट में आके खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यकीनन हिंदुओं को भी पता है कि उनका सर्वाइवल भी इसी के अंदर है कि वो कश्मीरियत की बात करें, जिसके हवाले से बात करें। मुदस्सिर हुसैन राजपूत साहब, मैं इस पे आपको शामिल करूँगा। ये फरमाइएगा कि इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया को हम अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे मामलात के ऊपर बात कर रहा होता है और जो मामला उससे नहीं भी रिलेटेड होता है उसमें भी कूद पड़ता है। कहाँ है इंडियन मीडिया? क्यों नहीं दिखा रहा ये सारा कुछ जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है? और क्या अगर इंडियन मीडिया ने नहीं दिखाया तो क्या दुनिया को पता नहीं चल रहा कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस्तेहसाल हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कश्मीरियों के साथ, वो इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया अगर नहीं भी दिखा रहा फिर भी इसको दुनिया जानती है। ज़रा बताइएगा इंडियन मीडिया के सारे सूरत हाल में क्या रोल है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इंडियन मीडिया जो है, क्योंकि आप भी जानते हैं गोदी मीडिया है, वो हमेशा उसी चीज़ को दिखाता है जो गोदी मीडिया, जो मोदी की अपनी पब्लिसिटी होती है। ये तो ज़ाहिरी बात है उनकी पब्लिसिटी नहीं है, ये तो उनका चेहरा है जो दिखाने के लिए वो कासिर हैं, वो कभी भी नहीं दिखाएंगे अपना ये चेहरा। और जहाँ तक मैडम शमीम साहिबा ने बात की, ज़ुबैर साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की, उसकी तरफ हमें पॉइंट आउट आपने भी किया जैसे प्रोग्राम के मौजू में, वो ये कि पहले आबादी के तनासुब तब्दील करने की साजिश थी, लेकिन अब वहाँ के नौजवानों को बेरोज़गार करके बाहर भेजने की साजिश की जा रही है कि ये रोज़गार की तलाश में यहाँ से निकलें, क्योंकि ये उनके लिए वबाल जान बन चुके हैं। क्योंकि यही एहतजाज करते हैं, ये सड़कों पे आते हैं तो दुनिया देखती है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि गोदी मीडिया ने ही शायद मोदी को शिकायत की होगी कि ये इतने सारे लोग जो आते हैं ना एहतजाज करते हैं, इनको हम छुपा नहीं सकते। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब ये दिखा लेते हैं, फिर हम नहीं दिखाते तो हम झूठे पड़ते हैं। तो इसलिए इनके लिए कुछ आप इंतज़ाम करें। तो हमेशा शुरू से लेके 5 अगस्त 2019 से लेके जो है मोदी हुकूमत की यही पॉलिटिक्स रही है कि कुछ ना कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करे। पहले आबादी के तनासुब को तब्दील किया, अलकाबंदी की, फिर 10 लाख डोमिसाइल इजरा किए, जारी किए हिंदुओं को, भारत के लोगों को। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा रोज़गार के मौके ख़त्म कर दिए गए, मुसलमानों को ख़त्म कर दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया। अब इंडिया से लोगों को ला कर आबाद किया गया, वहाँ पर नौकरियाँ दी गई। तो ये एक सिलसिला है, ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल होती जाएगी, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल मामला है, सब जानते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की इस पर करारदादें मौजूद हैं। तो लिहाजा इस मामले पर बड़ी संजीदगी से सोचना होगा, मगरिब को देखना होगा, दुनिया को देखना होगा। हमारे जो दोनों मेहमान जो बाहर बैठे हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। इंटरनेशनली सतह पर ये बात सबके सामने पहुँच चुकी है। और दूसरी बात, आपने 2023-24 से लेकर मुसलसल इनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि नॉर्मल हालात कहाँ हैं। आप नॉर्मल हालात मकबूजा कश्मीर की बात करें, उनकी भारत की अपनी रियासतों के अंदर नॉर्मल हालात नहीं है। जब से लेके 15 से लेके मोदी बरसरे इक़्तिदार आया है, वो अपनी रियासतों के अंदर नॉर्मल हालात नहीं किया। तो ये तो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे तो काबज़ है, वहाँ वो नॉर्मल हालात का दावा कैसे कर सकता है। और सब जानते हैं कि ये जो लोग हैं ये रोज़गार के लिए और जो बाहर एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज नहीं है, ये बिल्कुल ये चीज़ साबित हो चुकी है कि वो मोदी का चेहरा एक्सपोज कर रहे हैं। आज आप इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया जान रही है कि वहाँ पे क्या हालात हैं। वहाँ पे एक रोज़गार, डेली वेजेस हैं, उनको रोज़गार, उनको 2 वक्त की रोटी अगर एक हुकूमत फराहम ना कर सके तो उनके दावे झूठे साबित होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल हमीद लोन, आपको हम इसमें शामिल करते हैं। फरमाइएगा कि इस वक्त एक ताकत की एक जंग छिड़ी हुई थी उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा के दरमियान, जिसमें मनोज सिन्हा जो है वो जीत गया। उसने ताकत के जितने भी अहम पैरामीटर्स थे वो अपने नाम करवा लिए, फाइनेंशियल पावर्स ले ली, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ले ली। अब एक चपड़ासी को भी उमर अब्दुल्ला भर्ती नहीं कर सकता। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो किस हद तक, क्योंकि मनोज सिन्हा जो है वो जो पैराशूटर है वो तो दिल्ली से लाया गया और उसको यहाँ पे इम्प्लांट किया गया मनोज सिन्हा को, किस हद तक ये फेलियर है दिल्ली की उस सरकार का जिसका वजीर दाखिला हर 2 महीने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन की तरह मकबूजा कश्मीर का विजिट करता है। कितना बड़ा फेलियर है इनका और कितने बड़े जो इन्होंने दावे कर रखे थे वो सारे के सारे जो हैं वो खाक हो गए हैं। जी यासिर रहमान, 5 अगस्त 2019 के बाद हालात तो यकसर तब्दील हो गए हैं। अब दुनिया को दिखाने के लिए जो वहाँ इलेक्शन रचाए गए, अब चूंकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली ही पावरलेस है, तो वहीं जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली का कठपुतली वजीर आला है वो तो वाकई चपड़ासी की हैसियत रखता है।
اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب جہاں ریلیویشنز کے حوالے سے عمر عبداللہ نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی اور اس پہ کہا تھا کہ آپ کے مسائل حل کریں گے, آپ کو ریگولر کیا جائے گا اور تنخواہیں بھی ملیں گے, لیکن سارا جو ہے وہ ایل جی سنا کے پاس ہے. وہ جس طرح چاہے وہ لوگوں کو ہانک سکتا ہے, وہ جس طرح چاہے لوگوں کو لے جا سکتا ہے. تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اب 2-3 چیزیں ہے اس میں. ایک تو یہ کہ بھارت کی معیشت بھی سکڑ رہی ہے, مالی بحران کا بھی ہندوستان شکار ہے, اور دوسرا یہ کہ قانون سازی جو ہے وہ بڑی کمزور ہے لیبر قوانین کے حوالے سے, اور جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہندوستان کا ڈالر بھی آپ نے دیکھا وہ کل نچلی سطح پہ آ گیا ہے. آہستہ آہستہ معیشت سکڑ رہی ہے. تو جو ہندوستان کے اندر یا جو کشمیر کے اندر بھی جو نجی کمپنیاں ہے, سٹارٹ اپس ہے, وہ بھی مالی مشکلات کا شکار ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ 85% سے زیادہ افرادی قوت جو ہے وہ غیر منظم شعبے میں ہے. تو وہیں کشمیر کے اندر جو کانٹریکٹ یا لیبر قوانین ہے اس کا نفاذ انتہائی کمزور ہے. اگرچہ قوانین موجود ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اچھا, یہ جو صورتحال ہے, یہ جو بھی بن رہی ہے جس میں منوج سنہا کے پاس ساری طاقت ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ سروائیو نہیں کر پا رہے, سول انریسٹ کی سچویشن بن چکی ہے, تو ان کی 14-15 کور بھی آپ نہیں روک پائے گی, اور منوج سنہا کا جو یہاں پہ اس کا گھر ہے, جہاں پہ گورنر ہاؤس ہے, اس کو لوگ گھیرے میں لے لیں گے اور بہت جلد اس کو جلا دیا جائے گا اور منوج سنہا کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا جائے گا, جس طرح سے احتجاج ہو رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہوگا. اب جو میں نے بات کی 5 اگست کے بعد جس طرح سے کشمیریوں کے شکنجے کسے ایل جی سنہا نے, دہلی سرکار نے, تو وہیں جو ان امپلائی ریٹ ہے وہ بھی 40% سے زیادہ ہے. اب تو وقت آ گیا ہے کہ ان کے ایوانوں میں آگ لگانی ہوگی. اب تو وقت آیا ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں. یہ تو آہستہ آہستہ کشمیریوں کو مار رہا ہے, یہ تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ان کی جان نکال رہا ہے. تو لہٰذا ایل جی سنہا تو ایک بڑا قاتل ہے, وہ بیٹھا ہی اس لیے, اور اس کو لائسنس دیا گیا ہے کہ آپ ماریں بھی, آپ ان کی معیشت بھی ختم کریں, آپ ان کو قتل بھی کریں, آپ سب کچھ تباہ کریں, تو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اسے. تو بہرحال یہ اگر اٹھ کھڑا ہونا ہے تو وہ کشمیریوں نے اٹھ کھڑا ہونا ہے, وہ عوام نے اٹھ کھڑا ہونا, اور اس نام نہاد اسمبلی کو بھی جو ہے نا وہ اس کا قلعہ کما کرنا ہوگا, اور ایل جی سنہا کا بھی بستر گول کرنا ہوگا تاکہ وہ دہلی بھاگ جائے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں شمیم صاحبہ اس میں آپ کو ذرا شامل کروں گا, یہ فرمائے گا کہ تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کر لیتے ہیں. ایک طرف یہ 14 سے 16 ملین جو کشمیری ہیں جو ان تینوں خطوں میں آباد ہیں, یعنی وادی کے اندر, جموں کے اندر اور پھر لداخ کے اندر, وہاں پہ صورتحال ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو آزاد کشمیر کی عوام ہے. تو ایک تو ایک کمپیریزن بنتا نہیں, لیکن پھر بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس قدر آزاد کشمیر کی عوام خوشحال ہیں اپنے مواقعوں کے اندر, پرائسز میں جو ان کو سبسیڈائز کیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے اس کے اندر, اور ان کا جو ذہنی سکون ہے, اگر اس کا کمپیریزن کر لیا جائے مقبوضہ کشمیر سے, تو کوئی کسی قسم کا آپس میں کوئی ان کا تقابلی جائزہ بنتا ہے؟ اس سے پہلے میں اگر آپ مجھے ایک منٹ دے دیں, میں آپ کو, آپ نے ریسورسز کی بات کی تھی, شاید پوچھا تھا مہمان سے. کشمیر کے مقبوضہ جموں کشمیر 9,000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے, جو 4 ریاستوں کو جاتا ہے ہندوستان کے. ریسورسز اتنے زیادہ ہیں, اور واپس جب ملتی ہے تو وہ کس طرح سے ملتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. آپ نے جموں کی بات کی کہ جموں کے لوگ کیوں اٹھے ہیں. جموں کے لوگوں کو ہمیشہ 35A اسی لیے لاگو کیا گیا تھا پہلے, بہت سال پہلے 1928 کی بات سے, کہ یہ اسی لاگو کیا گیا تھا کہ جموں کے لوگوں کو ہمیشہ, ڈوگروں کو ہندوؤں سے ہمیشہ خطرہ تھا کہ یہ قابض ہو جائیں گے. جب 35A 375 کو ہٹایا گیا, ایبروگیٹ کیا گیا, آپ کو معلوم ہے اس سے کیا ہوا؟ سب سے زیادہ پریشر جو ہے جموں ریجن پر پڑا ہے, کیونکہ پہلا پڑا جموں تھا, اور ایمپلائمنٹ جب بڑھ جاتی ہے وہ جموں کی ہی بڑھے گی, اور جب ان ایمپلائمنٹ ہوگی وہ جموں کی ہوگی. کیونکہ کشمیر سے جب دربار منہ ہوتا تھا تو سارا کچھ ریسورسز جموں کے لوگوں کو ملتے تھے. اب وہ ہندوستان کو جا رہے ہیں, ان کو ریئلائز ہو گئے جموں کے لوگوں کو, لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اب آپ نے کمپیریزن کر دیا, دیر از نو کمپیریزن بٹوین دا 2 اسٹیٹس.
آپ دیکھیں سب سے پہلا جو ریشو ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایجوکیشن ریشو کیا ہے. پاکستان اور ایشین ریجن میں سب سے برصغیر میں جو سب سے زیادہ ریشو ہے ایجوکیشن کا ہائیسٹ وہ آزاد جموں کشمیر کا ہے 85%. اگر آپ بجلی دیکھیں گے یہاں بجلی پہاڑوں کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے, سڑکیں پہاڑوں کے ساتھ بھی, دریا کے ساتھ بھی, اور ہر ریجن میں یہاں پر ہر خطے میں یہاں پر بجلی پانی آپ کو میسر ملے گا. کشمیر میں ابھی بھی 25 دن کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سردیوں میں, جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں. اور اس کے بعد اگر آپ کریں گے کمپیرزن, میں 87 کا آپ کو بتاؤں, میں 87 میں پاکستان آئی تھی, جب ہم مری سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا اتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ آسمان کے تارے زمین کو چوم رہے ہیں. رات کا ٹائم تھا, مری سے نیچے اتر رہے تھے تو مجھے کہا گیا یہ آزاد کشمیر ہے. اس وقت وہ چمک رہا, تارے واقعی زمین پر اتر آئے تھے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے نیچے جب ہم آ گئے تو میں دیکھ رہی تھی آپ کی جس کو آپ کہتے ہیں 4 ویل بڑی سی گاڑی ہے, وہ سوزوکی ٹائپ بڑی, اس میں آپ بھینس اور ڈنگر لے کے جا رہے تھے. ہمارے یہاں تو ماروتی اس وقت منسٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی, ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ تھی. اور اس کے بعد وہاں سے آتے ہیں صبح کو مظفر آباد, کوٹلی, راولا کوٹ, پونچھ, جہاں سے آتے اسلام آباد میں آتے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, دوسرے دن ویزا لے کے چلے جاتے تھے. ہمیں دہلی میں 15 سے 2 مہینے اور اس کے بعد پاسپورٹ بھی نہیں ملتا تھا. اتنی سہولیت. اب تو پاسپورٹ کے دفاتر بھی آزاد کشمیر بھی اوپن ہو چکے ہیں. آپ کے یہاں پر بہت سارے لوگ روزگار کے لیے کراچی, پنجاب, بلوچستان ہر جگہ ہے. کبھی نہیں سنا ہے کہ وہاں خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا. 87 سے پہلے کی بات ہے, 2 مہینے پہلے میں علی گڑھ میں تھی, میرے بھائی علی گڑھ میں پڑھتے تھے, میں اس کو وزٹ کرنے گئی تھی. رات کے اندھیرے میں مجھے کمیونل رائٹس ہو گئے, کشمیر یہاں سے بھاگ جاؤ, اور جموں تک ہم راستے میں بھاگتے ہوئے آئے, گھر میں پناہ لے لی کہ پھر میں نے توبہ کر دی. کمپیریزن بالکل آپ نے کہا جی کمپیریزن کوئی نہیں ہے. اور آپ کی ریاست چمک رہی ہے, آزاد کشمیر کو وہ کون سی سہولت نہیں ہے جو آپ جو مل رہی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ اس چہرے کے حوالے سے جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پردوں کے پیچھے چھپایا گیا تھا, اب پوری دنیا کے سامنے یہ مسخ ہو چکا ہے. امریکہ کی جانب سے 13 بھارتیوں اور ایک تجارتی ادارے پر ویزا پابندیاں صرف ایک جرم کی سزا نہیں ہے, بلکہ اس عالمی ناسور کے خلاف چارج شیٹ ہے جسے مودی کا بھارت کہا جاتا ہے. دنیا یاد رکھے یہ وہی نریندر مودی ہے جو خود 2005 سے 2014 تک امریکہ کی نو فلائی لسٹ میں رہے ہیں اور جنہیں گجرات کے کسائی کے طور پر ویزا دینے سے انکار کیا گیا تھا. آج تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. بھارت کی ریاست اب صرف مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی نہیں کر رہی, بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل کرائم سنڈیکیٹ بن چکی ہے. نارکو ٹیررزم کے حوالے سے جہاں بھارت فینٹینل جیسا زہر بیچ کر امریکی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, وہیں مودی کے لاڈلے گوتم اڈانی پر امریکہ میں $250 ملین کی رشوت ستانی اور دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے. جون 2023 میں یاد رکھیے گا کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوتا ہے, جس کا پھر اعلان وہاں پہ آ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس وقت کا وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر انڈین ریاست ملوث ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنو ہے نیو یارک کے اندر اس کے قتل کے حوالے سے جو سازش رچائی جاتی ہے اس کو ایکسپوز بھی امریکہ کی ایجنسیز کرتی ہیں اور اس میں را ملوث پائی جاتی ہے. ابھی حال ہی میں اکتوبر 2025 میں امریکہ نے تاریخ میں پہلی بار ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے درجنوں غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کو ڈیپورٹ کر کے بھارت واپس بھیجا. یہ ہے مودی کا وہ وشو گرو بھارت جہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں, جس کی ریاست دوسرے ملکوں میں جا کر قتل و غارت کر رہی ہے. آج ہم اس حوالے سے سوال کریں گے کہ کیا بھارت ایک ملک ہے یا ایک ایسی روگ سٹیٹ ہے جو منشیات بیچتی ہے, اپنے ہی لوگوں کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے اور دوسرے ملکوں کی خود مختاری پر حملے کرتی ہے. اس حوالے سے بی بی سی نے کچھ عرصہ پہلے ایک سٹنگ آپریشن ٹائپ کیا تھا, ایک رپورٹ بھی جاری کی تھی. ذرا کہ ہندوستان کی ریاست بھی اور ہندوستان کے کارپوریٹ ادارے اس ناسور میں کس حد تک ملوث ہیں, ذرا آپ کو وہ دکھاتے ہیں. This is very harmful for the health, but very harmful. But
Customer cannot understand. The BBC went undercover in a pharmaceutical factory in India that makes this drug, Tafradol, an addictive opioid mixed with a muscle relaxant. You guys are doing really massive operation. 5 million tablets. The team were led here by a clue picked up on the other side of the world. It's an addict who has taken the drugs. A local task force raided a neighborhood searching for drug dealers. Tafradol looks like a medicine, but it's used as a street drug. The BBC found these pills all over West Africa, in Cote d'Ivoire, in Ghana, in Nigeria. The packet reveals a logo of a company called Eveo Pharmaceuticals, based in India. अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक इस वक्त ये मनशियात का नासूर बेच रहे हैं। मैं शाह जी इसमें आपको शामिल करूँगा। ये फरमाइएगा कि मोदी जो है उसको खुद 9 साल तक वीज़ा की पाबंदियों का वो शख्स शिकार रहा है। आज उनके शहरी और कंपनियां मनशियात फरोशी पर पाबंदियों का शिकार हैं। क्या ये साबित नहीं होता कि भारत की क़यादत का डीएनए ही मुजरिमाना है? असल में देखें, ये अगर आप देखें ना कि 10 मई के बाद लास्ट ईयर 2025 में मार्का हक के बाद जो दुनिया में भारत का चेहरा था वो बेनकाब हुआ है। भारत हमेशा जो है वो कोशिश करता रहा है झूठ पे मबनी अपने एक बयानिए को पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीरियों की तहरीक के खिलाफ, और अपना जो है वो असल रसूख था वो समझ रहा था कि दुनिया में अब वो एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आपने देख लिया ये पिछले ईरान वार के दौरान और अभी तक भारत को कोई पूछने वाला नहीं है। वजह सिर्फ यही है कि भारत जो है वो हमेशा से झूठ पे मबनी अपनी एक पॉलिसी चलाते हैं, जो आज की इस दौर में, ये सोशल मीडिया के दौर में, वो चीज़ें अब उस तरीके से नहीं असरअंदाज हो रही जो आज से कुछ अर्सा पहले होती थी। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि ये जो ड्रग डीलर्स हैं वहाँ पे भारत की जो हिंदुआता पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी जो है ना वो इंटरनेशनल जो कानून है उसको भी पामाल करते हैं, और जो लोकल कानून उन्होंने बनाए हुए थे उसके ऊपर भी वो अमल नहीं करते। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल को जो हीरोइन और इस किस्म की ड्रग्स पे लगाया गया, वो वजह ये थी कि वो तहरीक आज़ादी से दूर हों, वो माशी तौर पे कमजोर हों। ये सारी चीजें जो है ना उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन वक्त साबित कर रहा है कि वो पॉलिसीज जो भारत चाह रहा था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हों और दुनिया की आंखों में भी धूल झोंक रहा था कि वहाँ पे हालात भी अच्छे हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन वो सब कुछ जो झूठा बयानिया था वो दुनिया के सामने आता जा रहा है। ठीक है, ज़ुबैर साहब फरमाइएगा कि हम ये बात कैसे मान लें कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो ड्रग्स हैं वो अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट हो रही हैं, और इसी तरीके से वो ड्रग्स जो हैं अमेरिका के अंदर और उस पर पाबंदी लगाई जा रही है कंपनीज़ के ऊपर कि इसमें इनकी स्टेट को नहीं पता। जबकि कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि गुजरात के अंदर गौतम अडानी का एक पोर्ट था, सी पोर्ट, उसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में मनशियात पकड़ी जाती है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हिंदुस्तान की रियासत को पता नहीं है, और अगर पता है तो कितनी बड़ी मुजरिमाना तौर पे इनकी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है? देखिए, जब ये खबर आई है पूरी दुनिया में तो यहाँ के जितने भी दारुल हुकूमत हैं उसमें आप समझें कि हलचल मच गई है। यहाँ पर ये बात सबसे अहम है कि भारत पर सिर्फ जो है वीज़ा की पाबंदियां नहीं लगी, बल्कि इस पूरी स्टेट को जो है वो नार्को स्टेट का लेबल लगा दिया है। जो यूरोप के थिंक टैंक्स हैं इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हैं क्या भारत वाकई एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। फिर अगर हम बात करें इस फेंटानाइल की जो बात अगर की जाए तो इसको अमेरिका ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला हथियार करार दिया है। तो ये आप देखें कि इसकी ममासलत जो आपने भी बात की कि अफ्रीका में किस तरीके से हो रहा है या किस तरह, इसकी ममासलत हमें जो है वो तारीख में मिलती है। बरतानिया ने जो है वो चाइना में 1839 और 1856 में ओपियम वार यानी कि अफीम की जंग के जरिए चाइना को तबाह करने की कोशिश की थी। आज भारत जो है आप ये कह सकते हैं कि
साइबर फार्मास्यूटिकल का लिबादा पहनकर उसी चीज़ को सरअंजाम दे रहा है। तो ये कहना कि इसमें स्टेट का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये आप समझे कि इससे भारत को हम बरी ज़मा नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तादाद में जब मंशियात लेबॉर्ट्रीज में बन रही है तो वो हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर नहीं बन सकती। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्टेट सपोर्टेड नार्को टेररिज्म है। यहाँ पर सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ना सिर्फ जो है वो आज भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ अपने जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसकी वजह से, बल्कि अब फार्मास्यूटिकल पर भी बात आ गई है और रहते रहते भारत की प्रोडक्ट्स जो हैं उसका आप ये समझे कि दुनिया भर से खात्मा होने जा रहा है। तो ये जो इनका इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप देखें कि जो गोलियां सप्लाई हुई हैं लाखों की तादाद में अमेरिका में, तो अगर हम उसको ये कहें कि जब 2 मिलीग्राम फेंटाइल एक जान ले सकती है, तो ये लाखों की तादाद में सप्लाई होने वाली जो गोलियां हैं वो कितने एटम बमों के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क बल्कि एक ऐसी स्टेट के तौर पे सामने आया है कि जहां पर ना सिर्फ उनकी कोई प्रोडक्ट बल्कि उनकी अद्वियात पर भी अब कोई भरोसा करने नहीं लगा। तो ये यकीनी तौर पर जो है वो सबूतों के बिना पर बात की गई है, क्योंकि जब अमेरिका ने सबूत पेश किए तभी ये बात साबित हुई कि केस इंटरनेशनल एक ऐसी जो है इनकी कंपनी है जिसने लाखों अमेरिकियों की नसों में जो है वो खून की जगह बड़ी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आपने शेयर की हैं, और हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक स्टोरी इस वक्त पिंकी की चल रही है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम सैफरॉन जो नार्को टेररिज्म है वो तो बहुत बड़े पैमाने पे है, उस पर भी हमें यकीनन बात करनी चाहिए। मुदस्सिर हुसैन राजपूत साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये सच नहीं है कि भारत अब मैक्सिको के ड्रग कार्टल्स की तर्ज पर एक स्टेट कार्टल बन चुका है जो आलमी नस्लों को मनशियात से निशाना बना रहा है? यासिर साहब, ये तो मेडिसिन्स की सूरत में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं ना। मैं आपको एक और अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों में खाने वाली छालियों के ज़रिए वाइट ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। ये वो वाइट ड्रग्स ऐसी है, नौजवान खाते हैं, छालियों की सूरत में खाते हैं, लेकिन उसके अंदर वाइट ड्रग्स है। वो बेशक एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका टारगेट क्या है कि अपने आसपास के मुल्कों में पड़ोसियों के बच्चों को जो है वो ख़राब कर दे, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दें, उनको कोई परवाह नहीं है। वो ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन चुकी है, भारत के अंदर ड्रग्स की इंडस्ट्री बन चुकी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसको हुकूमत की सरपरस्ती होगी तो इतने बड़े पैमाने पे वो ड्रग्स मुल्कों में सप्लाई होती है, दूसरे मुल्कों में जाती हैं, मेडिसिन्स चली जाती हैं। तो ये बात तो अब कोई ढकी छुपी है नहीं। आपने बात की, ये तो ड्रग्स की बात, भारत दुनिया में इतना एक्सपोज हो चुका है। गुरुपतवंत सिंह के ऊपर हमले पे, हरदीप सिंह के कत्ल पे, उसके बाद 8 एजेंट कत्ल, 8 एजेंट जो उनके कतर में मिले, उसके ऊपर सऊदी अरब में उनके ईरान के अंदर मुकदमे कर दिए, अमेरिका के साथ हर जगह पे जी हर जगह पे एक्सपोज हुआ है कि कहाँ कहाँ वो किस किस चीज़ में मुदाखलत नहीं करता। दहशतगर्दी में वो मुदाखलत करता है, और इसके अलावा खुद मुख्तियारी दूसरे मुल्कों की ख़राब करता है, उसमें मुदाखलत करता है। मेडिसिन्स ऐसे ये जो ड्रग्स भेज के उन लोगों के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन मुल्कों के नौजवानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है। तो भारत हर जगह पे दूसरी तरफ आप ये भी देखें, सॉरी टू कट यू, दूसरा आप ये देखें जो कोरोना वायरस की उन्होंने वैक्सीन बनाई, वो दुनिया ने ये कह के रद्दी की टोकरी में फेंक दी कि ये पानी से ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसने मेडिसिन्स में तो बड़े पैमाने पे धोखा किया। उनको क्यों मालूम है ना कि मेडिसिन का जब लेबल लगा होगा तो लोग इस्तेमाल करेंगे, इतना उस पर चेकआउट नहीं होता, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भी मेडिसिन है, खा लेते हैं। पर उनको क्या पता है कि ये 2 नंबर भी है, साथ में ड्रग्स भी है, और साथ में ज़िंदगियाँ भी नुकसानदेह हो रही हैं, मुतासर हो रही हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं। अब इसके ऊपर तमाम मुल्कों ने, दुनिया के बड़े अहम मुल्कों ने नज़र उठाना शुरू कर दी है और पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। एक्शन शुरू हो गया, एक्शन शुरू। चले एक्शन पे जरा बात कर लेते हैं। शमीम साहबा, आपका क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े करीब से जानती भी हैं, अगर कोई सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी रुकन, गैर मुस्तकिल रुकन जो कि इंडिया है, इस तरह की सरगर्मियों में पाया जाता और यूनाइटेड नेशंस का बिलुमूम रुकन जो है, तो अब तक उस पर पाबंदियाँ लग चुकी होती, तो हिंदुस्तान के हवाले से अब तक क्यों खामोशी? इतने बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, जो हमारे पैनलिस्ट जैसे ज़ुबैर साहब हैं, शाजी हैं और मुदस्सिर साहब ने जो बात की है, तो पाबंदी नहीं लग चाहिए बतौर कंट्री इसके ऊपर? देखिए, इकनॉमिक कॉरिडोर्स में अगर आप देखेंगे ना, इंडिया ने अपनी एक जगह बनाई थी खुसूसन यूरोप के साथ। एक ज़माना था यूरोप में ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड ख़राब होता था किसी मुल्क का, उसके साथ तिजारत नहीं होती थी, लेकिन यूरोप ने खुद पुश डाल के उस कानून को दजियाँ उड़ाकर इंडिया के साथ तिजारत शुरू कर दी, और इस पैमाने पर कर दी कि अब उनके घरों में ड्रग्स आ रहे हैं तो उनको पता भी नहीं चला कि कहाँ तक हो।
یہاں تک کہ یوگا کی دوائی جو ہے، یوگا کا جو علاج ہے، یوگا ایک گیم کے ذریعے بھی انڈیا نے اتنی انفلٹریشن کی ہے، خصوصاً یورپ اور انگلینڈ میں، کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس یوگا کے پیچھے اور ہربلز کے پیچھے انڈیا جاتے ہیں، انڈیا سے جاتی ہیں اور وہاں ڈرگ ملتی ہے ان کو، اور وہ ان پہ ڈرگز ملتی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پابندی لگنی چاہیے؟ پابندی لگنی چاہیے، لیکن انہی یورپین کنٹریز کے ذریعے جن کو امریکہ نے آج کل لایا ہے، اور یہ خصوصاً ہمارے جو یورپ میں دوست بیٹھے، اس پر جب ہم جون میں بالکل میں کروں گی اس پر پیپر تیار، لازمی کیجیے گا۔ وہ رات اندوری صاحب نے کیا خوبصورت شعر بولا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی زد میں، اس محلے میں ہمارا مکان تھوڑا ہی ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ ابھی اس وقت یورپ بھی زد میں آ رہا ہے، امریکہ بھی زد میں آ رہا ہے، افریقہ میں آلریڈی آ چکا ہے، تو یہ تو معاملہ اگر کنٹرول کرنا ہے تو ہندوستان کے اوپر اس حوالے سے پابندی لگانی پڑے گی۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ، شارٹ اور رپورٹ آپ نے پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔